Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model Senior Secondary School 3B1 Mohali. Dear students, we are doing the sixth chapter, that is anatomy of flowering plants, and in my previous lecture I discussed about the topic plant tissues. There we discussed what are the various types of tissues which are present in plants like meristematic tissues and permanent tissues. Permanent tissues, they are further of two types, simple and complex, depending upon the type of cells present in them. In today's topic, we will study about plant tissue system. We will study what are the different types of tissues present in case of plants depending upon their structure and location. And we will also study the anatomy, that is the internal structure of root, stem and leaf by their transverse sections. So students, these are the transverse section of the root, stem and leaf, and the transverse section of root, stem and leaf, they are taken to understand their internal structure. So students, let's start it. Now students, we all know that meristematic tissues, they are of three types: apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. Now the various types of tissue systems which are present in case of plants, which are causing the primary growth of the plant, they are actually derived from the apical meristem. दी रूट और शूट एपिकल मेरिस्टम जो है स्टूडेंट्स, वो डिवाइड करके तीन प्राइमरी मेरिस्टम फॉर्म करती है: प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टम एंड प्रोकैम्बियम. And this protoderm, it will form the dermal tissue system. The ground meristem will form the ground tissue system, and the procambium, it will form the vascular tissue system. So these are the three different types of tissue system which are present in case of plant. First is dermal tissue system, second is what? Ground tissue system, and third is what? Vascular tissue system. And all these three tissue system, they are actually formed from the apical meristem. Now students, look at this diagram. There we can study that what is the dermal and what is ground and what is vascular tissue system. Dermal tissue system students, plant की जो covering है, जो outer skin है, that is formed of what? Dermal tissue system. तो ये जो येलो कलर का पार्ट दिखाया गया है, this is the dermal tissue system. तो ये outer covering जो है वो प्लांट की फॉर्म करता है. सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, जो पिथ वाला पार्ट है और कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है इंटरनल पार्ट का ऑफ द रूट एंड स्टेम, दैट इज मेड अप ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, फूड मटेरियल्स की स्टोरेज में हेल्प करता है और इवन प्लांट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. और तीसरा जो है स्टूडेंट्स, दैट इज द वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम. ठीक है, ये तीनों टिश्यू सिस्टम्स स्टूडेंट्स, ये रूट का टिश्यू सिस्टम दिखाया गया है, दिस इज द टिश्यू सिस्टम ऑफ द स्टेम एंड दिस इज द टिश्यू सिस्टम ऑफ द लीफ. जो येलो कलर का पार्ट है जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग बना रहा है, दिस इज द डर्मल टिश्यू सिस्टम. जो ग्रीन कलर का पार्ट है, दैट इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. और जो ब्लू कलर पार्ट है विच इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि पानी, मिनरल्स और फूड की कंडक्शन में हेल्प करेगा, दैट इज द वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम. So these are the three different types of tissue systems which are present in case of plants. Now students, next, so these are the dermal tissue system, vascular tissue system and ground tissue system. These are the three tissue systems which are actually formed from the apical meristem. They all are formed from the apical meristem. So they are originated from the meristematic cells, because apical meristem, it is a type of meristematic cell. Now students, पहला है dermal tissue system. Dermal tissue system, I told you, it is forming the outer covering of the plant body. So it is forming the skin. आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है प्लांट बॉडी फॉर्म करेगा. और जो डर्मल टिश्यू है, इट बिगिन एज पेरेनकाइमा. तो इसमें ये थिन वॉल्ड सेल्स हैं, दे डोंट हैव एनी थिकनिंग ऑन देयर सेल वॉल्स. एंड बाद में ये मॉडिफाइड होंगे और ये हेल्प करेंगे प्लांट को from the damage and desiccation. But earlier when they are formed, they are thin walled and they are parenchymatous.
नाउ स्टूडेंट्स, एक टिपिकल प्लांट में जो डर्मल टिश्यू है दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विच आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक है। और ये जो सिंगल लेयर होती है सेल्स की जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। दिस इज द एपिडर्मिस। तो डर्मल जो टिश्यू सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो एक सिंगल लेयर बनाएगा। देखो ये ग्रीन कलर का दिखाया गया है, दिस इज द सिंगल लेयर विच इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। तो ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज व्हाट, एपिडर्मिस। सो डर्मल टिश्यू क्या फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स, बाउंड्री बना रहा है विच इज नोन एज व्हाट, एपिडर्मिस। एंड एपिडर्मिस के ऊपर स्टूडेंट्स छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, वेदर इट इज द एपिडर्मिस ऑफ रूट और इट इज एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। दोनों में ही स्टूडेंट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। और ये जो रूट हेयर्स हैं या स्टेम के ऊपर जो हेयर्स प्रेजेंट हैं दे आर एक्चुअली द ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं उसने ग्रोथ करके हेयर फॉर्म्स किए हैं। बट स्टूडेंट्स जो हेयर्स प्रेजेंट है इन केस ऑफ रूट्स वो यूनिसेलुलर है, बट जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऑन स्टेम दे आर मल्टी सेलुलर, और उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्राइकोम्स कहते हैं। सो ट्राइकोम्स दे आर दी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी स्टेम एंड दे आर मल्टी सेलुलर। प्लांट्स जो है वो अपने ट्राइकोम्स को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इनहिबिट दी हर्बीवोर अटैक, ताकि उन पे कोई हर्बीवोर्स जो है उनको खाए ना, ठीक है, उनको डैमेज ना करे। तो इस तरीके से प्लांट्स ने अपने आप को एक प्रोटेक्शन करने के भी तरीके हैं। जैसे आर्टिका जो प्लांट है उसमें स्टिंगिंग हेयर्स प्रेजेंट होते हैं कि अगर कोई उस पर फीड करता है ना, तो हमें कई बारी जो है वो इरिटेशन होती है हमारी स्किन के ऊपर। तो ये एक्चुअली हेयर्स होते हैं जिनमें कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और जब हम इन्हें टच करते हैं तो दीज केमिकल्स दे आर इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी एंड दे कॉज व्हाट, इरिटेशन। So these hair-like structure, they are actually the growths of epidermal cells. नाउ स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस की जो अपर मोस्ट पार्ट है उसके ऊपर कई बार एक शाइनी सी लेयर भी प्रेजेंट होती है, एक वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होता है जो कि फैटी सब्सटेंस क्यूटिन का बना हुआ है, जो कि वाटर लॉस को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो कई बार देखा जाता है कि जो एपिडर्मिस है वो ऊपर से कवर्ड है विद अ वैक्स लाइक सब्सटेंस विच इज नोन एज क्यूटिकल विच विल प्रिवेंट दी वाटर लॉस। और एपिडर्मिस पे ही हमने देखा स्टूडेंट्स स्मॉल जो है पोर्स प्रेजेंट है, एंड दीज स्मॉल पोर्स दे आर नोन एज स्टोमेटा एंड दे आर गार्ड बाई गार्ड सेल्स, ठीक है, दे आर गार्ड बाई दी टू गार्ड सेल्स। और ये जो गार्ड सेल्स होती हैं दे आर बीन शेप्ड, दे आर किडनी शेप्ड इन केस ऑफ डाइकॉट्स, और मोनोकॉट्स में ये डंबल शेप्ड होती हैं। और ये जो बीच में छोटा सा पोर प्रेजेंट है इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज कर रही हैं एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस के टाइम। जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, दैट इज टेकिंग प्लेस थ्रू दिस स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट्स ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं। प्लांट्स अपना जितना पानी एब्जॉर्ब करते हैं स्टूडेंट्स उसका 99% वो लॉस कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये जो लॉस हो रहा है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस थ्रू दिस स्टोमेटा। और स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मल सेल्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द टिश्यूज other than the vascular and dermal tissue systems, and they are usually formed between the dermal and vascular tissue, and they are known as what, cortex कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू थोड़ा बहुत हमें vascular tissues के बीच में भी नजर आता है, and that is known as what, pith। For example students, ये दिखाया गया है डायग्राम, this is the cortex. So this is the ground tissue which is present between the dermal tissue system and vascular tissue system. So this is known as cortex. थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स जो ग्राउंड टिश्यू है ये वॉस्कुलर बंडल्स के बीच में भी प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, पिथ कहते हैं। सो कॉर्टेक्स और पिथ जो है दैट इज एक्चुअली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लास्ट है वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। एंड मेन फंक्शन क्या है जाइलम का, वी ऑल नो कि जाइलम वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन में हेल्प करता है, प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जाइलम दैट इज मेड अप ऑफ जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स जो है वो सपोर्ट का काम करते हैं। एंड वी ऑल नो दैट जाइलम एलिमेंट्स दे आर ऑफ 4 टाइप्स, ट्रेकिड्स, वेसल्स,
fibers and parenchyma, and in this only parenchyma is living and rest they are the dead parts. और नेक्स्ट वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज द फ्लोएम, एंड फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल्स की कंडक्शन में हेल्प करता है, एंड फ्लोएम दैट इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी फ्लोएम एंड दी सेकेंडरी फ्लोएम. तो प्राइमरी फ्लोएम जो प्रोकैम्बियम से बना है, जो प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा, ठीक है, सो दैट इज दी प्रोकैम्बियम, जो प्राइमरी प्लांट की जो लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो उस टाइम अर्लियर जो फॉर्म्ड है दैट इज दी प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है. सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो वॉस्कुलर कैम्बियम से बनेगा और वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनेगा. मैंने तुम्हें बताया बच्चे कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट की लेंथ इंक्रीज होना, और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है प्लांट की गर्थ जो है वो इंक्रीज होना. तो प्लांट की जो गर्थ इंक्रीज हो रही है दैट इज ड्यू टू दी सेकेंडरी फ्लोएम. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट दी 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स. नाउ वी विल स्टार्ट the anatomy of the रूट, स्टेम एंड लीफ. तो ये स्टूडेंट्स एक बारी कंपाइल किया गया है. सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या जिसको हम डर्मल भी कहते हैं. नेक्स्ट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है. थर्ड जो है वो वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम है. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एपिडर्मिस फॉर्म करता है, और कई बारी ओल्डर जब पार्ट्स होते हैं रूट और स्टेम के, वहाँ पे पेरिडम भी बनाएगा. ये पेरिडम कब फॉर्म होगा स्टूडेंट, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम होगा. तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे ऑन सेकेंडरी ग्रोथ, देयर आई विल टेल यू अबाउट दी पेरिडम. और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स हमने देखा भी, कॉर्टेक्स और पिथ जो है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कुछ हमें पेरेन्काइमेटस सेल्स दिखने को मिलती हैं, कई बारी कोलेनकाइमेटस मिलती हैं, और कई बारी स्क्लेरेनकाइमेटस मिलती हैं. और वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट दी एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ. तो सबसे पहले हम एनाटॉमी करेंगे डाइकॉट रूट की. नाउ स्टूडेंट्स, डाइकॉट रूट में देखो सबसे बाहर वाली कवरिंग तुम्हें क्या नजर आ रही है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द रूट दैट इज द एपिडर्मिस, ठीक है. और ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है रूट की विच इज द एपिडर्मिस, दिस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम एपिब्लेमा, ठीक है. रूट में हम इसको क्या कहते हैं, एपिब्लेमा भी कहते हैं. और देख रहे हो छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. ये एक्चुअली हेयर्स जो हैं जो कि रूट्स पे प्रेजेंट हैं, ये यूनिसेलुलर हैं. और देखो तो ये अगर तुम ध्यान से देखो तो दीज आर एक्चुअली दी ग्रोथ्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स. एपिडर्मल सेल्स ने ग्रोथ करके ये हेयर्स जो हैं वो फॉर्म्ड किए हैं. सो ये आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, दैट इज नोन एज व्हाट, एपिब्लेमा. इनर टू एपिडर्मिस, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डर्मल टिश्यू सिस्टम, है ना. अब डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर ये सारा क्या है, दिस इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ कॉर्टेक्स, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ कॉर्टेक्स. और कॉर्टेक्स जो है वो सारा का सारा पेरेन्काइमेटस है, थिन वॉल्ड सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, innermost layer of the cortex, that is known as what, this is known as what, endodermis. The innermost layer of the cortex is known as endodermis. और ये जो एंडोडर्मिस है स्टूडेंट्स, ये जो है इसमें ये बैरल शेप्ड है और इसमें थिकनिंग्स होती हैं. कैसी थिकनिंग्स होती हैं स्टूडेंट्स, इनकी जो टेनेंशियल वॉल्स हैं और रेडियल वॉल्स हैं इस तरीके से. सपोज दिस इज द एपिडर्मिस, तो ये जो इनर वॉल्स रेडियल वॉल्स हैं और टेनेंशियल वॉल्स हैं, यहाँ पे जो एंडोडर्मिस है दैट इज थिकेंड, ठीक है. एंड व्हाई इट इज थिकेंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल कॉल्ड सुबेरिन, ठीक है. तो एंडोडर्मिस जो है उसकी जो रेडियल वॉल्स हैं और उसकी जो टेनेंशियल वॉल्स हैं वहाँ पे थिकनिंग देखी गई है, और वो थिकनिंग जो है वो एक वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल की बनी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुबेरिन कहते हैं. एंडोडर्मिस के इनर स्टूडेंट्स तुम्हें क्या नजर आ रहा है, एंडोडर्मिस के इनर है पेरीसाइकल, जो कि यूनिलेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड है. और ये पेरीसाइकल किसका बना हुआ है, इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ व्हाट, पेरेन्काइमेटस सेल्स. और अगर तुम इनर टू अ पेरीसाइकल देखो तो अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, वॉस्कुलर बंडल्स हैं. जाइलम और फ्लोएम नजर आ रहा है. देखो दिस इज द फ्लोएम, पी इज द फ्लोएम एंड एक्स इज द जाइलम. अब स्टूडेंट्स यही इंपॉर्टेंट बात है, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे टीएस ऑफ डाइकॉट की अगर मैं स्लाइड रखती हूँ तो ये जो आइडेंटिफिकेशन होती है स्लाइड की,
कि वेदर इट इज़ अ रूट और इट इज़ अ स्टेम और वेदर इट इज़ अ डाइकॉट रूट और इट इज़ अ मोनोकॉट रूट। तो ये जो स्लाइड्स की आइडेंटिफिकेशन होती है स्टूडेंट्स, दैट इज़ मेनली ऑन द बेसिस ऑफ वॉस्कुलर बंडल्स। हम अंदर वाले जो वॉस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम हैं, उनको देख के ही हम आइडेंटिफाई करते हैं वेदर इट इज़ अ रूट और इट इज़ अ स्टेम और इट इज़ अ डाइकॉट रूट और इट इज़ अ मोनोकॉट रूट। अब स्टूडेंट्स क्या खास बात है, जितने भी रूट्स हैं उनके जो वॉस्कुलर बंडल्स हैं, दे आर, ये याद रखना, दे आर रेडियल। व्हाट इज, दे आर रेडियल। रेडियल का मतलब होता है कि व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम इट ऑल्टरनेट विद ईच अदर, है कि नहीं। जब जाइलम और फ्लोएम जो है वो ऑल्टरनेट कर रहे हैं, दे आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट मैनर और दे आर present along the different radii, that is known as radial vascular bundles। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम जो है they are alternating with one another, so this type of vascular bundle is known as what, radial vascular bundles। दूसरी क्या खास चीज़ है स्टूडेंट्स रूट के केस में, इन केस ऑफ वॉस्कुलर बंडल, कि जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम किसको कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम दैट इज नोन एज प्रोटोजाइलम एंड लेट फॉर्म्ड जाइलम दैट इज नोन एज मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम है वो थिन वॉल्ड होता है, उसका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, स्मॉलर साइज का है, और जो मेटाजाइलम है वो वाइडर है, ठीक है, उसका ल्यूमेन जो है दैट इज वाइडर। तो रूट्स के केसेस में स्टूडेंट्स क्या है, रूट्स के केसेस में जो जाइलम है, प्रोटोजाइलम है, दैट इज टूवर्ड्स द आउटर साइड, है कि नहीं, प्रोटोजाइलम दैट इज टूवर्ड्स द आउटर साइड। दिस कंडीशन इज नोन एज व्हाट, एक्सार्क। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्सार्क कंडीशन है। तो देखा जाए तो रूट्स के केसेस में जो वॉस्कुलर बंडल्स हैं दे आर रेडियल, they are present alternatively, and the protoxylem that is towards the outer side, और we can say exarch condition present है। और पित्त अगर देखा जाए, ये जो सेंट्रल पार्ट है ग्राउंड टिश्यू का, दिस इज नोन एज व्हाट, पित्त। पित्त दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये है स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट रूट। तो हमने ये सारे पॉइंट्स देखो स्टूडेंट्स स्टडी किए हैं, एपिब्लेमा है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, ठीक है, पेरीसाइकल है, वॉस्कुलर स्ट्रैंड्स के बारे में हमने पढ़ा कि रेडियल अरेंजमेंट है वॉस्कुलर बंडल्स का। रेडियल अरेंजमेंट का मतलब है कि वॉस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम दे आर ऑल्टरनेटिंग विद ईच अदर, they are present in alternate manner, and protoxylem that is towards the outer side, and this is known as what, exarch condition। so students roots के cases में ये चीज़ बहुत important है कि radial bundles है और exarch condition है, और students इसी के basis पे हम roots को क्या करते हैं, identify करते हैं। पित्त जो है that is not very prominent, इतना खास नहीं है in case of what, roots। so this was the structure of dicot root। now let us come to the structure of monocot root। monocot root की structure स्टूडेंट्स मतलब 90% यू कैन से इट इज सिमिलर टू दी डाइकॉट रूट, कि इसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट हैं, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट है ना। बट हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ डाइकॉट एंड अ मोनोकॉट रूट, कुछ फर्क नजर आ रहा है। देखो पित्त देखा जाए, पित्त जो कि डाइकॉट रूट में बहुत कम थी, लेस प्रोमिनेंट थी, दिस पिथ इज मच मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट। और क्या डिफरेंस नजर आता है स्टूडेंट्स, जो वॉस्कुलर बंडल्स थे, द नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम दे वर मच लो इन केस ऑफ डाइकॉट रूट, बट हेयर दे आर मोर इन नंबर, ठीक है। तो वॉस्कुलर बंडल्स जो हैं दे आर मोर देन 6 इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट, लाइक वी कैन सी हेयर द नंबर ऑफ वॉस्कुलर बंडल्स दैट इज नियरली 8। तो डाइकॉट रूट में वॉस्कुलर बंडल्स का नंबर कम होता है फ्रॉम 2 to 6, बट इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट इट इज मोर देन 6। और क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स की, जो वॉस्कुलर ये है जाइलम जो है, ठीक है, इट वॉज पॉलीगोनल, in case of what, dicot root, whereas in case of monocot root it is spherical in shape, ठीक है, ये spherical shape का है, like we can see ये spherical shape के हैं in case of the monocot root। so students this was all about the anatomy of dicot and monocot root। now let's study the differences between dicot and monocot root। so epidermis तो nearly जो है वो same ही है, ठीक है, सिंगल लेयर्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, हेयर्स प्रेजेंट है, ग्राउंड टिश्यू भी
It is same. It is differentiated into cortex, endodermis, pericycle and pith. हाँ जी, वॉस्कुलर बंडल्स, इसी में डिफरेंस है. 2 to 6 ऑल्टरनेट बंडल्स हैं जाइलम और फ्लोएम के. हेयर दे आर मोर देन 6, even more than 8 also. एंड जाइलम बंडल्स एक्सार्क हैं डाइकॉट रूट में. मोनोकॉट रूट में भी दे आर ऑल्सो एक्सार्क. बट जो वॉस्कुलर जाइलम वेसल्स हैं वो डाइकॉट रूट में हमने देखा पॉलीगोनल थे, बट हमने मोनोकॉट रूट में देखा दैट दे आर ओवल इन शेप, whereas in case of dicot root they were polygonal. So students, this was all about the differences between dicot and monocot root. Now let us come to the anatomy of dicot stem. अब ये स्टूडेंट्स डाइकॉट स्टेम दिखाई गई है. तो अब देखो रूट और स्टेम में क्या तुम्हें डिफरेंस नज़र आ रहा है. अब मैंने ये तुम्हें यही बताया है कि जब भी हमने किसी स्लाइड को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन जो है दैट इज़ of root and stem, that is only on the basis of the vascular bundles. तो सबसे पहले मैं तुम्हें vascular bundle का ही पॉइंट बताती हूँ. स्टेम के केस में स्टूडेंट्स जो vascular bundles हैं they are conjoined. रूट में कैसे थे? रेडियल. रेडियल क्या था? when जब xylem and phloem they are alternating with each other, they were present along different radii. यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो कि जो xylem और phloem है, ये दिखाया गया है फ्लोएम एंड दिस इज द जाइलम. जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट अलोंग द सेम रेडियाई. बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर, दे आर नॉट ऑल्टरनेटिंग विद ईच अदर. जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट on the same radii. This is known as what? Conjoint bundles. This is known as what? Conjoint bundles. तो स्टेम के अंदर जो वॉस्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे हैं स्टूडेंट्स? conjoint हैं. conjoint के बाद नेक्स्ट क्या है? they are collateral. कोलेट्रल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जब जाइलम और फ्लोएम इकट्ठे प्रेजेंट हैं देन फ्लोएम इज टुवर्ड्स द आउटर साइड. दिस इज द आउटर साइड. सो फ्लोएम देखो आउटर साइड पे है एंड जाइलम दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड. दिस इज नोन एज कोलेट्रल. तो ये मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए. conjoined मीन्स व्हेन बोथ जाइलम एंड फ्लोएम दे आर प्रेजेंट अलोंग द सेम रेडियाई. But when phloem is towards the outer side and xylem is towards the inner side, that is known as what? Collateral. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एंड आर्क कंडीशन. एंड आर्क रूट के केस में क्या था स्टूडेंट? एक्साक्ट कंडीशन था. प्रोटोजाइलम जो था दैट इज टुवर्ड्स द आउटर साइड. यहां पे जो प्रोटोजाइलम है स्टूडेंट्स, द न्यूली फॉर्म्ड जाइलम दैट इज टुवर्ड्स द इनर साइड. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स. ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द वॉस्कुलर बंडल वी कैन आइडेंटिफाई अ रूट एंड अ स्टेम. तो स्टेम के केस में जो वॉस्कुलर बंडल्स हैं दे आर conjoint, दे आर कोलेट्रल एंड दे आर एंडार्क. नाउ अब देखो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग देखो. आउटर मोस्ट कवरिंग तो एपिडर्मिस की बनी हुई है, ठीक है. और एपिडर्मिस के बाहर इवन स्टेम्स में क्यूटिकल भी प्रेजेंट है. क्यूटिकल इट वाज एब्सेंट इन केस ऑफ रूट्स, बट क्यूटिकल स्टेम में प्रेजेंट होता है जो कि पानी के लॉस को प्रिवेंट करेगा. अच्छा, स्टेम में हेयर्स प्रेजेंट हैं, बट ये जो हेयर्स हैं दे आर मल्टी सेलुलर. रूट्स के केसेस में जो हेयर्स थे दे वर यूनिसेलुलर. उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो कॉर्टेक्स है, हमने देखा रूट के केस में जो कॉर्टेक्स था दैट वाज ऑल पेरेन्काइमेटस, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. आउटर मोस्ट लेयर जो है कॉर्टेक्स की इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम दिस इज नोन एज हाइपोडर्मिस और ये कोलेनकाइमा का बना हुआ है. जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की वो पेरेन्काइमेटस है, बट जो उसकी बाहर वाली लेयर है वो थोड़ी सी हार्ड है एंड इट इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा और यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस कहते हैं. और जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की दैट इज व्हाट? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स दैट इज द एंडोडर्मिस. दैट इज द एंडोडर्मिस एंड वी ऑल नो कि एंडोडर्मिस की जो रेडियल वॉल्स हैं और टेनेंशियल वॉल्स हैं उनमें थिकनिंग्स प्रेजेंट हैं सुबेरियन की, और इन थिकनिंग्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दिस इज नोन एज व्हाट? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जो पानी के लॉस को क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे. बिकॉज इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है. जाइलम के थ्रू पानी और मिनरल्स की कंडक्शन हो रही है, तो ये वाटर लॉस को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं. सो दिस वॉज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. और अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? वॉस्कुलर बंडल्स दे आर प्रेजेंट. और पिथ जो है दैट इज वेरी प्रोमिनेंट. वी कैन सी इन द फिगर ऑल्सो कि पिथ जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है इन केस ऑफ व्हाट? डाइकॉट
stems. So students, we have studied about these structures. You can take these screenshot. तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस स्टडी किया, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की आउटरमोस्ट लेयर हाइपोडर्मिस है, मिडल लेयर जो है वो पेरेन्काइमा की बनी हुई है, और इनर मोस्ट जो लेयर है दैट इज एंडोडर्मिस. और एंडोडर्मिस में इवन कई बारी स्टार्च की डिपोजिशन हो जाती है, एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम स्टार्च शीथ. बाकी पेरीसाइकिल प्रेजेंट है इसमें, बट पेरीसाइकिल जो है दैट इज मल्टी लेयर्ड एंड इट इज पेरेन्काइमेटस एज वेल एज स्क्लेरेन्काइमेटस. अब देखो स्टूडेंट्स, रूट के केस में जो पेरीसाइकिल थी वो सिंगल लेयर्ड थी, वो पेरेन्काइमेटस थी. यहाँ पे पेरीसाइकिल जो है वो मल्टी लेयर्ड है और वो पेरेन्काइमेटस के साथ साथ स्क्लेरेन्काइमेटस है. वॉस्कुलर बंडल्स आई हैव टोल्ड यू दे आर कंजॉइंट, दे आर कोलेट्रल एंड एंडार्क कंडीशन है. हाँ, एक चीज रह गई, ओपन टाइप. ओपन टाइप का मतलब क्या है, जैसे ये स्टेम है और ये वॉस्कुलर बंडल्स इसमें प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है. दिस इज द जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम, ठीक है. तो ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्टूडेंट्स एक कैम्बियम प्रेजेंट है, वॉस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है. अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है दैट इज नोन एज ओपन वॉस्कुलर बंडल्स. तो जितने भी डाइकॉट्स हैं उनमें कैम्बियम दैट इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ऐसे वॉस्कुलर बंडल्स को हम कहते हैं ओपन. क्लोज्ड किसको कहेंगे, जिनमें कैम्बियम एब्सेंट है. जितनी भी मोनोकॉट्स हैं, मोनोकॉट स्टेम में हम आगे देखेंगे, उनमें कैम्बियम एब्सेंट है, तो दे आर नोन एज व्हाट, क्लोज्ड वॉस्कुलर बंडल्स, ठीक है. बाकी मेडुलरी रेज भी देखी गई हैं इन बिटवीन दी वॉस्कुलर बंडल्स एंड पिथ दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम. वो हमने डाइकॉट स्टेम की एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम. हाँ, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में कोई डिफरेंस नजर आया? यस, देयर आर डिफरेंसेस. हमने देखा कि डाइकॉट स्टेम में वॉस्कुलर बंडल्स जो थे दे वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे रिंग में प्रेजेंट थे. यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो वॉस्कुलर बंडल्स हैं दे आर स्कैटर्ड, है कि नहीं. तो जब वॉस्कुलर बंडल्स एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइकॉट स्टेम में था, उसको हम कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट्स, यू स्टील. व्हेन द वॉस्कुलर बंडल्स दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग. बट जब वॉस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, जैसे मोनोकॉट स्टेम में हमने देखा वॉस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, इनको हम कहते हैं अटैक्टोस्टील. क्या कहेंगे इसको? अटैक्टोस्टील, ठीक है. अटैक्टोस्टील मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट है. और ध्यान से अगर देखो स्टूडेंट्स, तो वॉस्कुलर बंडल्स जो बाहर वाली साइड पे हैं दे आर स्मॉलर इन साइज, और अंदर वाली साइड्स पे जो वॉस्कुलर बंडल्स हैं दे आर लार्ज इन साइज. कॉर्टेक्स देखो अनडिफरेंशिएटेड है, वहाँ पे हमने देखा कॉर्टेक्स दैट वाज डिफरेंशिएटेड इनटू हाइपोडर्मिस, मिडल वन कॉर्टेक्स एंड इनर वन एंडोडर्मिस. यहाँ पे कोई ऐसा एंडोडर्मिस है ना, पेरीसाइकल, that is absent in case of the monocot stem. और जो जाइलम है स्टूडेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन अ वाई शेप्ड मैनर. देखो ऐसे जाइलम जो है दैट इज प्रेजेंट इन अ वाई शेप्ड मैनर, और बिलो द प्रोटोजाइलम एक कैविटी प्रेजेंट है विच इज़ नोन एज लाइसिजिनस कैविटी, जो कि पानी से फिल्ड होती है. और पूरे के पूरे ये जो वॉस्कुलर बंडल्स हैं दे आर कवर्ड बाई स्क्लेरेन्काइमा, दे आर कवर्ड बाई स्क्लेरेन्काइमा. तो स्टूडेंट्स, डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की जो हम डिफरेंस है, ठीक है, और जो हम आइडेंटिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ दीज वॉस्कुलर बंडल्स कह करते हैं. तो वॉस्कुलर बंडल्स डाइकॉट स्टेम में दे आर प्रेजेंट इन अ रिंग, और मोनोकॉट स्टेम में दे आर स्कैटर्ड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द मोनोकॉट स्टेम. और ये देखो स्टूडेंट्स, डिफरेंसेस लिखे गए हैं. सो एपिडर्मिस डाइकॉट स्टेम में दे आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, ठीक है. मल्टी सेलुलर हेयर्स हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट हैं. मोनोकॉट में भी सेम पॉइंट्स हैं, बट हेयर्स दे आर एब्सेंट, यूजुअली एब्सेंट, बट क्यूटिकल इज प्रेजेंट. हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का बना हुआ है इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम. Here the hypodermis that is made up of sclerenchymatous cells. ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड है, यहाँ पे बताया कि ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है. वॉस्कुलर बंडल्स जो हैं वेज शेप्ड हैं, वी शेप्ड हैं, यहाँ पे ओवल हैं. हाँ, वॉस्कुलर बंडल्स दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग. यहाँ पे वॉस्कुलर बंडल्स कैसे हैं? स्कैटर्ड हैं. कंजॉइंट है, कोलेट्रल है, ओपन है, एंडार्क है. यहाँ पे भी कंजॉइंट है, कोलेट्रल है, एंडार्क है, बट यहाँ पे क्या है? क्लोज्ड है. मोनोकॉट में कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. डाइकॉट स्टेम में
कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज्ड है, और कैम्बियम ना होने के कारण मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ दैट इज एब्सेंट। लाइसिजिनस कैविटी डाइकॉट स्टेम में एब्सेंट है और मोनोकॉट स्टेम में इट इज प्रेजेंट। सो यू कैन सी द डायग्राम। सो डायग्राम से चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर होंगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, लाइसिजिनस कैविटी प्रेजेंट, ये करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो हमने ये स्टडी किया अबाउट द डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। अब अगर ब्रॉडली तुमसे कोई स्टेम या रूट के बीच में डिफरेंस पूछे, तो वी हैव डन द एनाटॉमी ऑफ रूट एज वेल एज वी हैव डन द एनाटॉमी ऑफ द स्टेम। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रूट एंड स्टेम? तो हमने देखा कि स्टेम में क्यूटिकल प्रेजेंट है, रूट में क्यूटिकल एब्सेंट है। स्टेम में रूट हेयर्स मल्टी सेलुलर हैं, रूट में रूट हेयर्स यूनिसेलुलर हैं। स्टेम में ग्राउंड टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएटेड है, रूट में भी इट इज़ डिफरेंशिएटेड। कॉर्टेक्स जो है वो अनडिफरेंशिएटेड है स्टेम में, रूट में जो कॉर्टेक्स है वो वाइड है, इट इज़ डिफरेंशिएटेड। पेरीसाइकिल इन केस ऑफ स्टेम हमने देखा कि स्क्लेरेनकाइमा की भी बना हुआ है, पेरेनकाइमा का बना हुआ है, बट रूट के केस में हमने देखा पेरीसाइकिल दैट इज मेड अप ऑफ ओनली पेरेनकाइमा। वॉस्कुलर बंडल स्टेम में कंजॉइंट है, कोलेट्रल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और रूट के केस में दे आर फिक्स्ड और वो रेडियल हैं। जाइलम जो है स्टेम में एंडार्क है और रूट में एक्सार्क है। तो स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट दो पॉइंट्स बताए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन होती है स्टेम और रूट की। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट इज द एनाटॉमी ऑफ द लीफ। तो एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट और ये मोनोकॉट लीफ दिखाया गया है, तो हम डायग्राम की हेल्प से ही करते हैं। स्टूडेंट्स, जो डाइकॉट लीफ होती है दैट इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है। हम देखते हैं कि जो डाइकॉट की लीफ है उनका एक डॉर्सल सरफेस है और एक वेंट्रल सरफेस है, ठीक है। जैसे ये अगर स्टेम है और ये लीफ प्रेजेंट है, तो ये जो अपर सरफेस है जो स्टेम को फेस कर रहा है इसको हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं, और ये बड़ा शाइनी होता है, इसको अडेक्शियल सरफेस भी कहते हैं। और जो लोअर सरफेस होता है दैट इज द वेंट्रल सरफेस, या उसको हम अबेक्शियल सरफेस कहते हैं। यूजुअली जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस अपर पार्ट में भी प्रेजेंट है, लोअर पार्ट में भी एपिडर्मिस प्रेजेंट है, बट जो स्टोमेटा है उनका नंबर जो है वो लोअर पार्ट में ज़्यादा होता है। तो लोअर पार्ट दे हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है वो हाइपोस्टोमेटिक जो है दे आर प्रेजेंट ऑन दी लोअर पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स की जो ग्राउंड टिश्यू है लीफ के केस में वो डिफरेंशिएटेड होता है इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। ये दिखाया गया इस तरीके से, ये पेलिसेड है, ऐसे जो पैरेलल अरेंज्ड होंगे इस तरीके से, दिस इज दी पेलिसेड, और कुछ नीचे तुम देख रहे हो ये ऐसे सर्कुलर है, दिस इज स्पॉन्जी। तो जो पेलिसेड पेरेनकाइमा है स्टूडेंट्स वो फूड मैन्युफैक्चर कर रहा है, और जो स्पॉन्जी है वो फूड को स्टोर करके रखता है। बीच में प्रेजेंट हैं वॉस्कुलर बंडल्स, एंड दीज वॉस्कुलर बंडल्स दे आर सराउंडेड बाय द बंडल शीथ सेल्स, और ये बंडल शीथ सेल्स जो है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, कोलेनकाइमा। नाउ नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट्स मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ जो है वो आइसोबाइलेटरल होती है लीफ। मोनोकॉट लीफ अगर जैसे तुम ग्रास को देखो या वीट या राइस की लीफ को देखो तो हमें पता ही नहीं लगता विच वन इज द अपर सरफेस एंड विच वन इज द लोअर सरफेस। तो जिसका अपर और लोअर सरफेस जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा, हम उन लीव्स को कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ, ठीक है। तो इन लीव्स में अपर सरफेस जो है दैट इट इज ऑल्सो हैविंग एपिडर्मिस, लोअर सरफेस इज ऑल्सो हैविंग एपिडर्मिस, और जो स्टोमेटा का नंबर है दैट इज इक्वल ऑन बोथ दी सर्फेसेस। जबकि डाइकॉट लीफ में ऐसा नहीं था, डाइकॉट लीफ में जो लोअर सरफेस है दैट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा, वेयर एज इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ द स्टोमेटा दे आर इक्वल इन नंबर ऑन बोथ दी सर्फेसेस। और क्या खास बात है स्टूडेंट्स मोनोकॉट लीफ में, इनमें बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लार्ज एपिडर्मल सेल्स हैं, और ये बुलीफॉर्म सेल्स व्हेन दे आर फिल्ड विद वाटर दे आर टर्जिड, ये पत्ती को जो है वो टर्जिड रखेंगी, है ना, एक्सटेंडेड रखेंगी, और जब इनमें से पानी लॉस हो जाता है, ये फ्लैसिड हो जाती हैं, तो ये लीव्स को रोल कर देंगी ताकि अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम दी वाटर लॉस, ताकि ये पानी का लॉस जो है वो ना होने दें। और क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये देखो ये जो ग्राउंड टिश्यू है इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ ये अनडिफरेंशिएटेड है, यहाँ पे ये डिफरेंशिएटेड था, एक पेलिसेड था एक स्पॉन्जी था। यहाँ पे हम देख रहे हैं सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू जो है दैट इज ऑफ सेम टाइप, इट इज अनडिफरेंशिएटेड। सो स्टूडेंट्स दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन अ डाइकॉट एंड अ मोनोकॉट लीफ. So this is the detailed study
a description of a dicot and monocot leaf that we have done with the help of these pictures and diagrams. Last we are left with the difference between a dicot and monocot leaf. So what is the orientation? It is, in case of dicot leaf, it is dorsiventral. monocot leaf में ये isobilateral है. स्टोमेटा जो हैं वो हाइपोसोमैटिक हैं, दे आर ऑन द लोअर सरफेस. मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा दे आर इक्वल ऑन बोथ दी सरफेसेस. मोटर सेल्स जिसको हम बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं, दे आर एब्सेंट इन केस ऑफ डाइकॉट्स बट दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट्स. मिजोफिल सेल्स जो ग्राउंड टिश्यू है, मिजोफिल सेल्स जो ग्राउंड टिश्यू, मिजोफिल सेल्स कहते हैं हमने, वहाँ पे मैंने अभी पहले वर्ड यूज़ किया ग्राउंड टिश्यू, तो एक्चुअली ये जो ग्राउंड टिश्यू है लीफ का, उसको हम मिजोफिल्स के नाम से जानते हैं, मिजोफिल टिश्यू. तो मिजोफिल टिश्यू डाइकॉट लीफ में डिफ्रेंशिएटेड है इनटू पेलिसेड और स्पॉन्जी. पेलिसेड फूड मैन्युफैक्चर कर रहा है, स्पॉन्जी उसको स्टोर करता है. वेयरएज इन मोनोकॉट लीफ इट इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड. वेनेशंस जो हैं, हमें पता है डाइकॉट लीफ की वेनेशन कैसी होती है, रेटिकुलेट होती है, एक जाल बना हुआ है. बट मोनोकॉट लीफ में जो वेनेशन है दैट इज़ पैरेलल. ठीक है. वेसल्स जो है, many प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ. 2 प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ. और बंडल शीथ जो है डाइकॉट लीफ में वो कोलेनकाइमा का बना हुआ है, बट मोनोकॉट लीफ में जो बंडल शीथ है जो कि सराउंड कर रही है वॉस्कुलर बंडल्स को, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, स्क्लेरेनकाइमा. So students, this was all about the detailed study of TS of dicot root, dicot stem, monocot stem and dicot and monocot leaf, and we also studied about the various types of tissue systems which are present in case of plants. So students, thank you to all.